outcome. This is the meaning of probability in mathematical form. This is probability. Now, probability of any event. Event is denoted by E. So, probability of any event is equal to number of cases of that event divided by number of total number in sample space. This is the notational formula of probability. ठीक है बेटा? Probability of any event is equal to the number of elements in that event, right? And total outcome of that experiment. जिस भी event को पूछ रहे हैं, जिस experiment में total outcome of that, right? Now, हमारे पास जो maximum event होते हैं, what is that? पहले हम बात करते हैं coin की. Coin. So, case is if a coin tossed once. अगर एक बार टॉस करते हैं तो व्हाट विल बी दी सैंपल स्पेस? कॉइन को टॉस करने पे एक हेड आता है और टेल. तो वी हैव टू एलिमेंट्स इन दिस सैंपल. हाँ जी बेटा बोलिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 2. So this is known as number of element in sample space. So we have 2. Now, second case is if a coin tossed twice, or this statement can be 2 coins tossed once simultaneously. ठीक है बेटा? So what will be the sample space? Suppose now here this is a coin. अगर मैं एक बार टॉस करता हूं तो we have these two options, right? And दूसरी बार टॉस करूंगा तो इस H का combination is again become with head and tail. So this is equal to head tail. एक उसको कंप्लीट किया, then TH and TT. So sample space is, if they are asking to write the sample space, you have to write sample space in this curly bracket, because this is the collection of all possible outcomes. Because ये set होता है बेटा sample space. So you have to write in set HH, HT, TH, then TT. This is your sample space. And how many elements in this sample space? We have 4. So if a coin toss, so if a coin toss once, it means number of outcome in a sample space is 2 raised to the power 1. Logic देखना बेटा. Now, if a coin toss 2 times, then 2 raised to the power 2. Right? Now in third case, अगर मैं ये कहूँ कि coin is tossed 3 times, a coin 8 tossed 3 times. और next language क्या होगी? 3 coins tossed at once. So 3 coins tossed once. Right? So this is these इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक है, बस ये ध्यान. ठीक है? Now we know that it will be 2 raised to the power 3 and 8. Total 8 outcomes. Now the next thing is we have to make the sample space of coin toss 3 times. यानी मुझे इसका sample space बनाना है. तो एक तो ट्री डायग्राम मेथड है ही आपका. एक बार ट्री डायग्राम बताता हूँ फिर से. Coin tossed once will give you head and tail only. In second attempt, this will be paired with again H and T. This is second toss. Then third toss, again each element is paired with H and T, H and T. And this will give you triple H, then H, H, T, then H, T, H, H, T, H, then H, T, T, H, T, T, then next is T, H, H, T, H, H, then T, H, T, T, H, T, then T, T, H, T, T, H, now triple T. These are the sample space, and number of element in sample space is 8.
अब जो दूसरा तरीका, दिस इज नोन एज ट्री डायग्राम मेथड। ट्री डायग्राम मेथड टू मेक सैंपल स्पेस। एक होता है मैकेनिकल वे, मैकेनिकल, मैंने शायद यूज किया था आपको क्लास में पढ़ाते हुए, मैकेनिकल मेथड। उसमें क्या है बेटा? फिर से बता दो सर, ट्री डायग्राम मेथड। ट्री डायग्राम मेथड, दिस इज अ कॉइन, और कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो वी कैन हैव ओनली हेड और टेल। कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब आप चेक करोगे क्या चीज, जब मैं दो कॉइनों को एक साथ टॉस करूंगा तो सपोज करो इस वाले पे हेड आया और इस वाले पे टेल आया, या हो सकता है दोनों पे हेड आए, तो वो पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। अगर दो कॉइन तक का है तो वो यहां तक हो गया। तीसरे कॉइन में तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्री डायग्राम मेथड क्या कहता है, पहले हेड एंड टेल आया, अब मैं कॉइन को दूसरी बार टॉस कर रहा हूं तो इस एच के साथ का कॉम्बिनेशन फिर हेड और टेल के साथ बनेगा, इस टेल का कॉम्बिनेशन फिर हेड और टेल के साथ बनेगा। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे दो लैंग्वेज यूज की है। अ कॉइन टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं, तो पहली बार टॉस कर लिया, ये रहा, इसमें तो हेड और टेल आ गया। अब जब दूसरी बार टॉस कर रहे हैं उसमें भी तो हेड और टेल आएगा, तो मुझे दोनों को मिला के आउटकम बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है कि मैंने जो पहले वाले हेड के साथ ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो हेड और टेल बने, उसको मैंने यहाँ दिखाया। देखो पहले वाले हेड के साथ जब मैं दोबारा टॉस कर रहा हूं तो कॉम्बिनेशन हेड के साथ भी बन सकता है, टेल के साथ भी बन सकता है। फिर मैंने टेल के साथ भी सेम, हेड और टेल के साथ। तो ये जो है ये फर्स्ट कॉइन का आउटकम है, ये सेकंड कॉइन का आउटकम है, एंड देन आई मेड विद थर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एलिमेंट के साथ दो दो पेयर बनाता जा रहा हूँ। पहले वाले के साथ दो पेयर बनाए, देन फिर इस टेक्स्ट के दो पेयर बनाए, सी का भी फिर दो पेयर के साथ कर दिया। इस तरीके से मैं इसको कंबाइन कर दिया। क्लियर हो बेटा क्या ये ट्री डायग्राम? मतलब हर एक एलिमेंट की ब्रांच निकालता चला गया मैं। पहले इस एच की ब्रांच एच और टी, देन इस एच की ब्रांच एच और टी, एक और कहोगे मैं फिर इस एच और टी के साथ कर दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। बोलो क्लियर हो बेटा ये वाला मेथड ट्री डायग्राम? यस सर। अब मैकेनिकल देखना बेटा, मैकेनिकल क्या कहता है, वी हैव टोटल आउटकम, मुझे पता है कि एक कॉइन को तीन बार टॉस करेंगे तो 8 आउटकम्स आएंगे, तो इसके हाफ कर दो, हाफ कर दो, तो क्या आएगा 4। तो राइट 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, ठीक है। 8 का हाफ हो गया बेटा 4। उसे एक बार और बता दीजिए सर, मैकेनिकल। टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा? 8 होंगे तीन बार टॉस करने पे। बोलो 2⁻3। ये मैंने बताया जितनी बार आपको टॉस करना है उसकी पावर करते जाओ, क्योंकि कॉइन में सिर्फ दो ही आउटकम होते हैं। तीन बार टॉस कर रहे हो तो 2⁻3, 4 टाइम्स टॉस कर रहे हो तो 2⁻4। इस तरीके से चलते जाओ बेटा, ठीक है। तो अब मेरा तरीका क्या है, ये मैकेनिकल मेथड क्या कहता है कि आपके पास जो टोटल आउटकम आए वो 8 है, 8 का हाफ करो दैट इज 4। तो 4 टाइम्स राइट हेड 4 टाइम्स राइट टेल, राइट, देन इसका हाफ कर दो विच इज इक्वल टू 2। नाउ अगेन राइट 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, अगेन 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, इसी ऑर्डर में, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड। नाउ 2 का हाफ, क्योंकि तीन बार टॉस करने तो 3 का पेयर बनेगा, तो अब एक बार फिर से हाफ कर दो, 2 का हाफ 1 होता है, तो राइट 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1, राइट। तो आप मैच करोगे तो ट्री डायग्राम से भी वही ऑर्डर आ रहा है, 1 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे देखो टीटीएच है, मेरा भी 7 नंबर पे टीटीएच। तो मैकेनिकल में क्या है, मैंने एक बार जेई में क्वेश्चन देखा था, देव आस्क्ड फॉर 4 कॉइन 2⁻4, ठीक है ना। तो वो पूछ रहे थे कि 15th नंबर पे विच वन इज द आउटकम। जैसे यहाँ पे 8 आउटकम आए तो 7th नंबर पे कौन सा आउटकम आएगा, तो टीटीएच, वहां पे 4 ऑप्शन है। अब आप रैंडमली जब बनाते हो ना कि टी ऐसे करके एच एच टी एच 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 टी एच देन एच टी टी, इस तरीके से बनाते हो तो ये ऑर्डर में नहीं है, ये रैंडम है। इससे हो सकता है आप सारे बना लो, कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन इनसे एक तो कोई भी स्किप नहीं होगा, कोई रिपीट नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है ये ऑर्डर में आएंगे। दिस इज नोन एज मैकेनिकल, यानी अगर किसी रॉ मटेरियल को मशीन में डाल दिया जाए
तो एक ही टाइप की शेप निकल के आएंगे, उसको बोलते हैं मैकेनिकल। सर clear है इनका बेटा ये? ऑर्डर किस बेसिस पे सिलेक्ट होता है? हेड टेल के बेस पे, बस पहला हेड है देन टेल, उन्होंने ये बोला था फर्स्ट आउट, मतलब एक्सक्यूज मी फर्स्ट। सर। जी बेटा बोलिए। सर एक बार बोलो। जब हम फोर कॉइन टॉस करेंगे उसका भी एक बार केस बता दो मैकेनिकल मेथड से। बिल्कुल बता दो, मैकेनिकल मेथड से बता दो। 4 कॉइन। सर हाँ बेटा। सर ये किस क्राइटेरिया पे सर ऑर्डर करते हैं सर हम सर 4 कॉइन कि में फर्स्ट 16 ये आउटकम होगा आएंगे सेकंड ना। ये होगा? ये क्राइटेरिया है इसका बेटा, ये कि मैंने इसका हाफ किया तो 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, तो पहले हेड को वो दे रहे हैं। देखो मैंने ना ये चीज कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन से जो जेई में आया था, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, जेई में मैंने देखा था, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा। इसी स्कूल में इनके बगरोडिया में ही एक बच्चा कोई प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया था, जैसे इस समय आप 12th में हो तो कोई प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस टाइप से कि 13th नंबर पे या 12th नंबर पे विच आउटकम, हमारे पास कौन सा आउटकम होगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ 12th नंबर। तो ऑर्डर जो मेरे को पहली बार मैंने वो क्वेश्चन तभी किया था, फिर उस समय मैंने एक तो ट्री डायग्राम देखा मैंने, इसमें मेरे पास 12th नंबर पे या 15 नंबर पे या चलो सपोज कर लो 7th नंबर पे ये आता है, तो एक तो इस तरीके से जो 7th नंबर पे आ रहा है मैंने वो ले लिया। ठीक है, जैसे आपने पूछा, एक बच्चा कह रहा था मुझे यहाँ पे मैंने टेल लिख दिया, यहाँ पे हेड लिख दिया, तो अब 7th नंबर पे मेरा एच आएगा। ठीक है ना, तो अब वो भी है। तो जब मैंने उसके आंसर से मैच किया, क्योंकि उसके बाद जब आंसर था तो मेरे आंसर से मैच किया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये पहले हेड लिखते देन टेल। नॉर्मल लैंग्वेज में भी जब हम वो कॉइन का टॉस करने की बात करते हैं तो कोई टेल बाद में बोलता है, हेड ही पहले बोलता है। और एक जनरल लैंग्वेज में देखो हेड पहले है टेल बाद में, यानी कि जो टॉप है ऊपर से नीचे, आपका हेड है देन आपके पैर है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला प्रोसीजर आप ले सकते हैं। मतलब मान के चल लो आप, यहाँ पे क्या है कि आप जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसके ब्याह पे कि हेड को पहले प्रेफरेंस दो देन टेल को, ये मैंने आपको बोला है। और ऑर्डर जो आप कह रहे हो कि जो मैंने लॉजिक बनाया मैकेनिकल का, एक ये बनाया है और एक ये है। अब ये किसी बुक में ऐसे नहीं पढ़ा बेटा, ऐसे जैसे आपसे डिस्कस किया तो आपने कुछ मुझे हिंट दी सर ऐसे भी बना सकते हैं, किसी ने ऐसे बताया, ये तो खैर है बुक्स में हायर क्लासेस में, ये कहीं पे नहीं पढ़ा बेटा। ये आप कह लो ट्रिक कह लो, बट इसको इनाम दे दिया मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल क्या है, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बस ये इसका लॉजिक है बस। ठीक है, मैंने इसको, ठीक है, मैंने इसको हमेशा बस ये ध्यान रखा है कि नंबर 1 पे हेड रखेंगे देन टेल रखेंगे, यानी हेड से और बॉटम तक आएंगे तो टेल सबसे लास्ट में होती है, तो टेल को लेंगे बाद में। ठीक है बेटा बोलो, जो ऑर्डर वाला क्वेश्चन था वो क्लियर है? हमेशा प्रेफरेंस हेड को दो पहले, बस हेड पहले देन टेल बाद में। ठीक है, अब 4 कॉइन के लिए आपको पता है नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, 2 to the power of 4, यानी कितना हो गया बेटा 16, राइट? और Yes, sir. 16 का हाफ कितना होगा बेटा 8, तो राइट 8 टाइम्स हेड, 2 3 4 5 6 7 8 and 8 times tail, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? अब इसका हाफ कर दो विच इज 4, तो राइट 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, फिर 4 टाइम हेड 4 टाइम्स टेल, राइट? अगेन हाफ विच इज 2, so 2 times head 2 times tail, head head tail tail head head tail tail, राइट? अब इसका फिर से 2 से कर दो 1, तो हेड टेल 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 हेड टेल, तो दीज आर योर 16 आउटकम्स। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर सैंपल स्पेस ही बनाना पूछ रहे हैं हमारे पास, तो ये आपकी मर्जी है, पहले आप टेल को लिख लो और बाकी है। लेकिन अगर क्वेश्चन रिलेटेड है कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा आउटकम है, तो मेरा सजेशन है आप हेड से स्टार्ट करो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो बस।
Is this clear or not, बेटा? बोलो बेटा. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गया कॉइन का केस बेटा. डाई का आपको ऑलरेडी पता ही है कि डाई में कितने आउटकम होते हैं. डाई में कितने होते हैं बेटा एक सिंगल डाई में? 36. 6. हाँ, सिंगल डाइस में बेटा 6. 6. पेयर ऑफ डाई नहीं पूछा. समझ लेगा Single die. पॉसिबल आउटकम्स. सिंगल डाई. तुम्हारे पास सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 राइट. यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस की बात करूं तो दिस विल बी 6 raised to the power 1. दैट इज आंसर इज 6. सेम वे में अगर 2 डाई, ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा बेटा यस सर, तो नंबर ऑफ 36 आएगा. सैंपल स्पेस 6 स्क्वायर. सर 36 आउटकम. ठीक है. अब इसका भी वही तरीका है बेटा. तरीका वही है जैसे आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6. इस 1 को ट्री डायग्राम मेथड में इसका फिर से 2 3 4 5 और 6 ये पेयर बनाया आपने. फिर आप 2 को फिर करोगे आप 1 2 3 4 5 6 के साथ. तो जो आपके सैंपल स्पेस बनते हैं वो 1 1 1 2 और अप टू 1 6. देन 2 1 2 2 2 3 2 6. सिमिलरली यहाँ पे भी 6 1 6 2 और अप टू 6 6. These are your 36 outcomes in a when we throw a die 2 times or a pair of dice. ठीक है बेटा. ऐसे ही अगर आपके पास अब देखो सैंपल स्पेस बनाने के लिए आएगा डाई का तो मैक्सिमम 2 तक है. 3 का नहीं आएगा. 3 के लिए पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास 3 के बारे में तो इसमें आउटकम कितने आएंगे. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 to the power 3 which means 216. तो मुझे टोटल आउटकम पता है 216. अब जो फेवरेबल है तो वो अपने लॉजिक से अपने ब्रेन में और लिख लिख के कि कौन कौन से फेवरेबल पूछ रहा है. वो फेवरेबल कहने का मतलब है इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5. अब सम 5 का मतलब है जो इवेंट आएंगे उसका सम, यानी 1 और 1 2 है इसमें. तो 3 वाले में सपोज करो 5 वाले कौन से आएंगे 1 2 2. एक तो ये बनता है बेटा. ऐसे अपने लॉजिक पे आपको डिसाइड करना है. देन 2 1 2 ये हो गया. देन आपका हो सकता है 2 2 1. अब मुझे बताओ 5 के इसके अलावा कोई तीसरा हो सकता है, मतलब फोर्थ हो सकता है कोई 5 का? 1 1 3. 1 1 3. ठीक है. फिर 1 3 1. देन 3 1 1. और कोई हो सकता है बेटा? बोलो. 6 केसेस आ गए. अब इसके अलावा कोई हो सकता है? चलो ये ले लेते हैं 4 No, 0 sir. 1. ये भी 5 हो रहा है. No, sir. नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. तो अब अपने लॉजिक पे अपने आईक्यू पे बेस करके आपको ये बनाना है. तो टोटल वी हैव ओनली 6 केसेस. तो जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है दैट इज 6/216. फाइनल आंसर इज 1/30. तो ये आपने क्या किया, ये जो आपका फेवरेबल केस है उसका सेट बना दिया. राइट. तो ये 6 केसेस आए, इनको काउंट कर लिया. 6 बाई टोटल आउटकम 1/36 इसका आंसर. क्लियर बेटा? बोलो बेटा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो बेटा. कॉइन का डाई का ये हो गया. फिर आता है कार्ड्स बेटा. आई थिंक कार्ड्स भी मैंने डिस्कस किया था, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कार्ड्स को. कार्ड, प्लेइंग कार्ड जिसे बोलते हैं. वी हैव टोटल 52 कार्ड्स बेटा. ठीक है. टोटल कितने होते हैं? 52. एंड दीज कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स. राइट. मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ. 2 कलर्स. वन इज रेड and another is black. Black. So red we have 26, black we have 26. Now red divided into 2 parts. Black divided into 2 parts. Right? इसको बोलते हैं suits. ठीक है. How many suits we have? 1 2 3 4. Red divided into 2 part which is heart
and a diamond. Heart shape is this, अगर कार्ड देखे हो तो, और डायमंड की शेप हो गई आपकी ये, ठीक है। तो दिस इज फिल्ड विद रेड कलर, तो ये रेड कलर हो गया बेटा आपका, ये भी रेड कलर। Number of heart card is 13, diamond is also 13. Now in black we have spade and this is club. स्पेड का जो डिजाइन होता है वो ये हो गया, ये ड्राइंग मेरी गंदी है, समझ जाना बस। और क्लब हो गया, and this is with black color. ठीक है, इस तरीके से आपके पास दिस इज ऑल्सो 13 एंड दिस इज ऑल्सो 13। कलर 2 हो गए, सूट्स आपके पास 4 हो गए। देन वी हैव किंग्स। हाउ मेनी किंग्स वी हैव? 4, राइट बेटा। क्वीन we have 4, then jack we have 4, and the combination of these 12 cards, yani total these 12 cards are known as face cards. face cards, right बेटा। और इसके अंदर अगर मैंने एसेस को मिला दिया, ace we have 4, so now combination of this 16 cards, this is known as honored card. honored card, ये ध्यान रखना। फेस कार्ड का मतलब है जिनकी फोटो छपी होती है कार्ड पे, दैट इज नोन एज फेस कार्ड। और ये ऑनर्ड कार्ड का मतलब होता है इनको स्पेशल ऑनर मिलता है मैक्सिमम गेम्स में, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक एंड एसेस, एंड नंबर असाइंड फॉर एस के लिए। एस के लिए जो नंबर असाइंड होता है, कुछ क्वेश्चन में नंबर असाइंड के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछते हैं। एस के लिए नंबर 1 होता है बेटा, और किंग के लिए होता है 13, क्वीन के लिए होता है 12 एंड जैक के लिए होता है बेटा 11। हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बेटा बोलो, समझ आ रही है? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट था? ओके ठीक है बेटा, देखो ये चीज क्लियर हो गई बेटा। कुछ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी में नंबर से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन बिकॉज आप सबको कहीं ना कहीं आप एक बार जेई तो अपीयर करोगे, या कहीं आगे फ्यूचर में कभी जॉब वगैरह के लिए कोई एग्जाम देते हो तो उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख के आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज ये चीजें आपको पता होना चाहिए कार्ड से, ठीक है। तो हाउ मेनी ब्लैक कार्ड वी हैव? 26, रेड कार्ड 26, हाउ मेनी सूट्स वी हैव? वी हैव 4 सूट्स। This is your question number 1. A die is thrown 2 times. तो die का भी हमने किया था बेटा, die is thrown 2 times. This is your question number 2. A coin is tossed 4 times बेटा. This is question number 3. Right? Then fourth question. Now a coin is tossed and a die is thrown. अब ये देखो बेटा, this is question number 4. Now in question number 4, a coin is tossed. तो coin के आउटकम क्या होते हैं बेटा? Coin is tossed. Coin के आउटकम हो गए head and tail. And a die is thrown. तो एक आउटकम के साथ डाई के 6 पेयर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनको लिख देना है सैंपल स्पेस में, विच इज अब पेयर बना दो H1, H2, H3, H4, H5, H6, then T1, T2, T3, T4,
T5, T6. These are the possibilities when we throw a coin along with a die. ये total possibilities आएंगी. The number of element in this sample space is 12 बेटा. तो हमारे 12 आउटकम बन रहे हैं. बोलो क्लियर है बेटा? आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कॉइन में 2 आउटकम होते हैं और डाई में 6 होते हैं. 2 into 6 is 12. लॉजिक आपको खुद डेवलप करने हैं क्वेश्चन करते करते. Is this clear बेटा? Question number 4 is clear to all of you? Yes, sir. सर मेरे को डाउट था सर, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए सर हमें 6 पे 6 into 2 by 2 कर सकते हैं. हाँ वो कर सकते हो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनाने के लिए. लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा ये नहीं पूछ रहा कितने एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में. इसमें ये पूछ रहा है बेटा कि आपको सैंपल स्पेस बनाना है. तो ये मेरा आंसर है इस केस में. ये दिस इज माय आंसर. दिस यू हैव टू मेक. और यहाँ तो काउंट करके भी लिख सकते हो. जब आपसे नंबर पूछे जा रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम इन दिस सैंपल स्पेस, देन इस 12 के लिए आप कुछ भी आप बना सर पॉइंट 16.1 में हमें कुछ भी लिखना नहीं है ना, आउटकम सिर्फ सैंपल स्पेस बनाकर रख देना है. हाँ मैं तो ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी. बस जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है. तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको. सिर्फ जैसे ये लिखा है इसके आगे लिख दो एन ऑफ एस इक्वल टू. एक्स्ट्रा काम आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये भी लिख दिया तो साथ में, ठीक है. अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन की लैंग्वेज ये पूछ रही है आप, ठीक है. आप उसके लिए ट्री डायग्राम मेथड बनाओ, मैकेनिकल मेथड, ये आपके ऊपर है. क्योंकि मेरे पास जब भी एक से ज्यादा इवेंट होते हैं तो मैं डायग्राम बनाता हूँ सो दैट की कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस ना हो जाए, ठीक है. जब आप बिगिनिंग करते हो किसी भी चीज की तो थोड़ा सा उसको जितना भी यूनिटरी मेथड है चलो ज्यादा बेहतर है. जब प्रैक्टिस हो जाती है आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि उस समय तक आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो जाती है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. In question number 5 they are saying that a coin is tossed then a die is rolled. ठीक है. कॉइन के टॉस करने के बाद डाई को रोल करना है ओनली इन केस a head is shown. तो इन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आपके पास कॉइन में हेड आएगा उसी केस में आपको डाई रोल करना है, अदरवाइज नहीं करना. तो सपोज करो दिस इज अ कॉइन, वी हैव हेड एंड टेल. तो हेड के टाइम पे तो मुझे डाई को थ्रो करना है 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ नहीं करना. तो सैंपल स्पेस विल बी H1, H2, H3, H4, H5, H6 and last is T. So total possible outcome is 7. ठीक है बेटा. So this is the sample space. Now question number 6. In question number 6, 2 boy and 2 girl are in room X and X. अच्छा और एक Y. तो 2 रूम है बेटा मेरे पास. We have 2 rooms X and Y. In X room we have 2 boys, 2 girls. And room Y we have 1 boy and 3 girls. Right? So specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. पहले तो मुझे रूम सेलेक्ट करना है. सपोज करो एक्स रूम सेलेक्ट हो गया तो उसके अंदर से उस पर्सन को चूज करना है. तो सैंपल स्पेस विल बी XB1 XB2. यस. तो बॉयज को नाम दे दिया B1 B2, गर्ल्स को G1 G2. ठीक है बेटा. तो ये हो गया XB1 XB2 XG1 एंड XG2. ठीक है बेटा. और Y में क्या हो गया YG1 बिकॉज Y में सिर्फ एक ही बॉय है. और आपके पास देन हो गया YG1 YG2 and YG3. This is the possibility and number of outcomes in this is we have 2 2 4 and 8. We have 8 beta. Is this clear beta? Question number 6. Bolo beta. Question number 6 is clear. Yes, sir. Next is question number 7. Yes, sir. One die of red color, one of
व्हाइट कलर। ये कह रहे बेटा आपके पास 2 डाई है, दिस इज ऑफ रेड कलर, और आपने एक और ले लिया, चलो दिस इज ऑफ व्हाइट कलर। कलर मैटर करता है? कुछ नहीं करता, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है दो, मतलब There is a blue color dice, sir. Sir, I think there are 3 dice. Yes, sir. Sir, one is red, another Blue one color is also. and the third one is blue. रेड कलर, 1 व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर। अच्छा एक और भी है भाई, Yes, sir. चलो एक और बना लेते हैं, दिस इज ब्लू कलर, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, और प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग में 1 डाइस सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड इट, रोल्ड। हमने पहले तो क्या किया बेटा, एक बैग में है तो उस बैग में से रैंडमली एक डाई निकाला, 1 डाई सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, उसको रोल कर दिया तो उसमें 6 आउटकम हो गए। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट पेज इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। बताओ भाई इस क्वेश्चन का लॉजिक बताओ बेटा, लैंग्वेज से सर समझो जैसे पहले। एक डाइस है, एक डाइस में हाँ जी। 6 आउटकम आएंगे, जैसे ठीक रेड है। है तो रेड के 6 आउटकम्स, व्हाइट के 6 आउटकम्स, ब्लू के 6 आउटकम्स। तो मुझे आउटकम क्या बताना है आपको, तो अपर मोस्ट पे देना है, तो आपके पास क्या हो गया बेटा सैंपल स्पेस, तो सर लैंग्वेज के हिसाब R1, से R2, R3, R2 एंड R4, R5, R6, ठीक है, देन same as W W2 एंड and अप blue. टू 6, एंड देन लास्ट इज ब्लू, ब्लू 1, ब्लू 2 अप टू ब्लू 6। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आई बेटा, सर 18। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा योर पॉइंट। बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में? देखो मैथ्स की क्लास में जितना पार्टिसिपेट करोगे आपके, सर 2 to the power 3 6, सर 6 to the power 3 होना चाहिए ना सर, 6 क्यूब। क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही, आप ये नहीं कह रहे कि तीनों को एक साथ थ्रो करने कह रहे हैं, नहीं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, 1 डाई सेलेक्टेड एट रैंडम, एक डाई सेलेक्ट हुई, सपोज करो रेड सेलेक्ट हो गई, उसको रोल किया, तो रोल करने पे हमने थ्रो किया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, रेड में 6 आउटकम ही तो आएंगे रेड वाले में भी। तो हमने ये इंडिकेट करा कि रेड वाले में जब हमने थ्रो किया तो रेड में 1 भी आया, 2 भी आया, 6 भी आया, ये सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती है रेड वाले में। सेम व्हाइट वाले में आएगा, सेम ब्लू वाले में आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक बार में एक ही डाई चूज कर रहे हैं बैग में से, जो ये बैग है इस बैग में से मैंने एक डाई निकाली और उसको रोल किया, उसके जितने भी पॉसिबिलिटी वो नोट कर दी, फिर दूसरी डाई निकालेंगे। भाई अब जो हमारे पास कहने का मतलब क्या है, जब मैं बैग में से कोई डाई निकालूंगा तो ये फिक्स तो नहीं कि पहली बार में रेड आएगा, ये तो मैं मान रहा हूं कि पहली बार में रेड आ गया, उसको थ्रो किया, जो उसके आउटकम्स आए वो नोट कर लिए। हो सकता है व्हाइट आए तो व्हाइट के आउटकम्स ये आ सकते हैं, हो सकता है ब्लू आए तो ब्लू के आउटकम्स हो सकता है ये आए। तो हमने जो इनकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब कर। हुआ क्लियर बेटा? हाँ जी आर्यन जी, इज दिस क्लियर? यस सर। नाउ इन 8th क्वेश्चन, टाइम है ना बेटा, कितना टाइम? चलो आपको क्या करना है बेटा, अब आज की डेट में आप एक बार 8 to 16 क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 to 16 एक बार आप ट्राई करोगे, ठीक है। इसी तरीके का सैंपल स्पेस बनाना है आपको, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ के आपको सैंपल स्पेस बनाना है, तो आप ट्राई करोगे, दिस इज योर होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फर्स्ट डाउट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट बेटा? Okay, sir. Thank you. 1 second beta, Thank you, don't sir. leave class. One, don't leave class. Wait a second. Okay, now you can leave it. Uh, Thank you, sir.